Now we'll discuss about some important terms used in genetics. These are the terms used in the genetics, and these terms are very important in case of the genetics. Genes, alleles, factors, homozygous, heterozygous, hemizygous, phenotype, genotype, phenocopy, hybrid growth. These are the terms used in the genetics. And you people are familiar about these terms. Then first of all, we'll discuss about the gene. Gene. Genes, it is the small fragment of DNA. Gene is the small fragment of DNA which determine the characteristics from parents to offsprings. Gene determine the characteristics of offspring. It is the small fragment of DNA. The term genes was coined by Britson. The term gene was coined by Britson. The term gene was coined by Britson. How define the gene? Gene Masuma. genes are small fragment small fragments of DNA. Genes are small fragment of DNA. Next definitions about the gene. Genes genes are physical and functional and functional unit of heredity. Unit of heredity. Gene are a small fragment of DNA. Or next definition of the gene. Genes are physical and functional unit of heredity. Unit of heredity which determines characteristics which determine characteristics characteristics of offspring. Characteristics of offspring. Determine characteristics of offspring. Of offspring. Clear? Genes are small fragment of DNA or gene are physical and functional unit of heredity which determines characteristic of offspring. This is related to the gene. But in case of the genetics, Mendel's unable to use this term genes. In case of the genetics, Mendel unable to use the term genes. In place of the genes, Mendel used another word that is known as factor. Factor are elements. In Mendel experiments, Mendel used the terms which is responsible for, or you can say which is
determine the characteristics of the offsprings. That terms used by the Mendel, that is the factors or elements. बात को ध्यान से समझेंगे यहाँ पे बेटा। मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल एक्सपेरिमेंट टर्म्स फिनिश हो जाएगा, उस बात को मैं आऊंगा, थोड़ा सा यहाँ जान लें। मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल को जीन के बारे में पता नहीं था। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो आप स्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं उनको क्या कहते हैं। मेंडल ने उसको ये नहीं पता था कि यही जीन है। मेंडल ने उसको नाम दिया था एलिमेंट आर फैक्टर। ध्यान से सुने, मेंडल ने उसको नाम दिया था एलिमेंट आर फैक्टर। तो ये भी जो होता पॉइंट बना था कि उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे they are unable to recognize the element or factor। इसलिए थोड़ा सा मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पब्लिश या कहिए जो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। ये जो होता डिसएडवांटेज ये भी था कि जो टर्म इन्होंने यूज किया फैक्टर या एलिमेंट, वह उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उस चीज को उन्होंने जो होता है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया कि भाई टर्म या फैक्टर क्या होता है। बाद में जोहानसन ने जो होता है उसी को बताया जो होता है क्या है, चीन है। आइए उसको हम देखते हैं। तो पहले जाने चीन क्या है। चीन इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। Are gene are the physical and functional unit of heredity which determine characteristics of offspring. Next heading, alleles. What is the alleles? Alleles. Alleles. Next heading is the alleles. Different form of genes is known as alleles. Now you see, let's take one example. These are the homologous chromosomes. This is the gene. है ना। यहाँ पे मैं जो होता है दो लिया, एक कैपिटल टी, यहाँ जो जीन में ले रहा हूँ तो ट्रेड्स ले रहा हूँ करेक्टर्स, वो मैं हाइट ऑफ प्लांट ले रहा हूँ, प्लांट के हाइट को। देखिए कैपिटल टी यहाँ पे मैंने लिया, दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस वन स्मॉल टी स्मॉल। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना। देखिए कैसे अभी हम एलील्स को डिफाइन करेंगे, पहले मैकेनिज्म आप देख लीजिए। ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम को देखिए, ये क्या है, गैमेट्स आप बोल लीजिए क्या है, जीन है ना। देखिए ये जीन्स किसके लिए रिस्पांसिबल है, ये हाइट ऑफ प्लांट के लिए रिस्पांसिबल है। देखिए कैपिटल में आगे आपको बताऊंगा, कैपिटल होता है ये हाइट ऑफ प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ देखते हैं स्मॉल टी इसे डोमिनेंट बोलेंगे। अब स्मॉल टी देखते जो होता है, एक टाल जो होता है स्मॉल प्लांट के जीन है। ये किसके जीन है, ये टाल प्लांट के जीन है। ये क्या है, स्मॉल प्लांट के जीन है। और ये देखिए हाइब्रिड कंडीशन यहाँ पे है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस बात को ध्यान से आप यहाँ इतना ही समझ ले। अभी मैं मेंडल पे जो होता है मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लास में आऊंगा तो सारी बातें मैं वहां क्लियर करूंगा। केवल आप यहाँ ये जाने ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, अब इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या है, जीन है। लेकिन अब ये जो होता है कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल, इतनी बातें आप जानने की होता है। कैसा एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। देखिए
एलील्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, देखें, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स मींस देखें, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ स्मॉल टी, इसका मतलब जीन का कैसा है? अल्टरनेटिव फॉर्म है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन, देखिए लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम known as alleles। इतनी बातें साथ क्लियर हो गई होगी। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, सेम पोजीशन जहां कहीं कहीं आप देखेंगे बेटा सेम पोजीशन को टर्म यूज होगा लोसाई, इससे घबराएंगे नहीं, लोसाई यूज होता है, इसी को पोजीशन बोलते हैं ना। कहने का मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम या इन डिफरेंट सर अनदर वे आप कर सकते सर हैं। तो बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से बता दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से सुने, सब बातें क्लियर कर ली। देखिए हमने क्या बताया, ये क्या है? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना। और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से ये देखिए क्या है, जीन है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स है, सेम जीन है लेकिन उनका फॉर्म क्या है? अलग अलग है। देखिए जैसे ये सेम जीन का सेंस थोड़ा सा समझ ले। सेम जीन का सेंस क्या है कि यहाँ पे जितने जीन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है वो जीन्स किसके है? हाइट ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से सुनिए, जैसे हाइट ऑफ प्लांट के लिए अलग है, उसके बाद कलर के लिए जीन्स अलग है, फ्लावर के लिए जो होता अलग है। यहाँ पर जिस जीन की बात मैं कर रहा हूँ वो हाइट ऑफ प्लांट के जीन्स है, इसका मतलब सेम जीन है लेकिन कैसे प्रेजेंट है? डिफरेंट फॉर्म में। शायद इतनी बातें समझ में आ गई होगी। देखिए कैपिटल टी जो होता है, एक जीन, एक पेयर जीन ये है, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। अब देखें क्रोमोसोम के जिस पोजीशन पे जीन लोकेटेड होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसी को हम बोलते हैं उसकी पोजीशन या लोसाई। यहाँ पे देखिए या लोसाई है ना। देखिए यहाँ पे ये जीन है, इस पूरे क्रोमोसोम्स को वन पेयर हम बोलेंगे, दूसरा पेयर ये हुआ, तीसरा पेयर ये हुआ, है ना। देखें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज एलील्स। या दूसरे वे में कैसे आप डिफाइन करेंगे जीन्स को? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स इज नोन एज एलील्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स इज नोन एज एलील्स। आप एक बार इसको देख लीजिए। एलील्स की बातें सारी क्लियर हो गई कि नहीं? कंफर्म करें, मैं आगे चल रहा हूं। आशा करता हूं कि ये बातें एलील्स क्लियर हो गई। एक पॉइंट एलील्स में और देखें, द टर्म एलील, यहां मैं लिखा हूं नीचे, द टर्म एलील्स, द टर्म एलील्स वाज क्वाइंड बाय, मैं आपको पहले भी पिक्चर लिया था, बताया था कि देखिए रिएक्शन का कहां इन्वॉल्व होगा, यहां भी आ गया। The term alleles was coined by John W. Davidson. तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं यूज करूंगा। आगे आएंगे नेक्स्ट जो होता है। अच्छा फैक्टर नहीं बचा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट शायद हो गया होगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं एक बार कंफर्म करें आप।
जीन्स के लिए क्लियर हुआ कि नहीं? दोबारा देख ले, कोई भी डाउट आप अपने अंदर नहीं रखेंगे। मैंने बताया जीन्स आर द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, या आप लिखेंगे जीन्स आर फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद हम बात करें एलिप्स में। एलिप्स में बताया different form of genes which are located on same position of homologous chromosome is known as alleles, या आप कह सकते हैं different form of genes is known as alleles. The term alleles was coined by W. Watson. इतनी बातें मैंने आपको बताया। ये बताइए, ये सब समझ में आ गया कि किसी को कुछ डाउट है? सारी टर्मिनोलॉजी आप यहाँ क्लियर कर लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्लियर हो तो बताइए, आगे बढ़े हम। जल्दी रिस्पॉन्स करिए, बहुत सारे टर्म्स हैं भी इसमें। बोलिए भाई, बातें क्लियर हो गई कि नहीं? आवाज मेरी आप तक जा रही कि नहीं भाई? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है तो बोलिए भाई। चलिए आगे हैं हम फैक्टर पे, ध्यान से देखिए। आइए नेक्स्ट फैक्टर। यस सर, यस सर। सोच सोच के रिस्पॉन्स देते हैं, कहीं गलत न दे, है ना? चलिए आइए बेटा, अगली हेडिंग हम देखते हैं फैक्टर्स। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, फैक्टर के बारे में हम देखेंगे, है ना? आइए फैक्टर के बारे में जरा देखें, फैक्टर क्या है। देखिए बेटा, हमने आपको बताया ना, हमने आपको बताया था ना फैक्टर के बारे में, व्हेन मेंडल कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो जब आप पेरेंट्स से ट्रेड्स या कैरेक्टर ट्रांसफर हुए इसमें आप स्प्रिंग में, तो मेंडल ने जो होता है इस चीज को बताने में असमर्थ थे। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो ट्रेड्स या कैरेक्टर पेरेंट्स से आप स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं। तो मेंडल ने ये नहीं बताया कि जीन की वजह से हो रहे हैं, उन्होंने बताया ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर और जीन, सॉरी फैक्टर और एलिमेंट्स। उन्होंने उसको नाम दिया क्या? फैक्टर और एलिमेंट्स। बात को ध्यान से समझें। जो ट्रेड्स या कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मेंडल ने उसको बताया कि क्यों ये ट्रांसफर होते हैं, किसकी वजह से होते हैं। उन्होंने बताया था कि ये ट्रांसफर होते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज फिर से बता दीजिए। चलिए भाई, एक बार सभी लोग कंफर्म करिए, संदीप तिवारी जी को ही आवाज नहीं जा रही है और सभी लोगों को। देखिए मेरी तरफ से प्रॉब्लम है कि आप तरफ से जरा बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है सर। आवाज क्लियर है सर? यस सर। वसुंधरा, ओके बेटा। चलिए ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया? राहुल पांडे वीडियो ऑडियो दोनों क्लिप, ओके थैंक यू राहुल जी। देखिए भाई, हमने बताया फैक्टर के बारे में ना, फैक्टर मैंने बताया कि जब मेंडल ने जो होता क्रॉस कराया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ प्रोजेनी में, वो किसकी वजह से हुआ, उसी का नाम उन्होंने क्या कहा? फैक्टर और एलिमेंट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फैक्टर और एलिमेंट। उन्होंने जो होता है इसको फैक्टर और एलिमेंट नाम दिया। देखेंगे फैक्टर और एलिमेंट, तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ लिखे फैक्टर्स, फैक्टर्स और एलिमेंट, फैक्टर्स और एलिमेंट्स, फैक्टर्स
factors are elements. Factors are elements or unit of factors are element or unit of heredity, which is responsible which is responsible which is responsible for inheritance and which is responsible for inheritance and inheritance and characters inheritance and appearance of that and appearance of appearance of अपीयरेंस ऑफ करेक्टर। 10 मिनट्स की वार्निंग आ गई भाई, नहीं हो पाएगा क्या पूरा? चलिए भाई देखिए, हमने बताया फैक्टर आर एलिमेंट्स क्या है। देखिए फैक्टर्स आर एलिमेंट्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी which is responsible for inheritance and appearance of character। ध्यान से देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि factor or elements are responsible are unit of heredity which is responsible for inheritance and appearance of characters। इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ बेटा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज द इनहेरिटेंस। तो ये फैक्टर जो होता है, जो ट्रेड्स रिस्पांसिबल है, सॉरी जो कैरेक्टर्स जो होता है ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसी के लिए ये फैक्टर या एलिमेंट रिस्पांसिबल है। ध्यान से देखिए, ये चीजें तो किसने बताया? मेंडल बताया। लेकिन बाद में जो होता है देखा गया, जब स्टडी किया गया, तो इसी फैक्टर और एलिमेंट्स को जो होता है नाम दिया गया क्या? जीन्स, है ना। इसी फैक्टर या एलिमेंट को नाम दिया गया क्या? जीन्स। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जीन्स किसके लिए रिस्पांसिबल है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स के लिए ना, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। लेकिन मेंडल के वर्ड में देखिए आप होता है फैक्टर और एलिमेंट की बात मैंने किया, फैक्टर और एलिमेंट्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स या कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। बता रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर्स जो होता है अपीयर होते हैं किसकी वजह से? किसी फैक्टर या एलिमेंट की वजह से। तो इसी के बेस पे मेंडल ने क्रॉस कराया था जो होता है टाल प्लांट ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट को उन्होंने जो होता है कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था, और ड्वार्फ प्लांट को जो होता है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था किससे? स्मॉल टी से। तो ये फोन जनरेशन में देखा था ऑल प्लांट्स वेयर टाल प्लांट्स। व्हाई ऑल प्लांट्स वेयर टाल प्लांट्स? बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। इसीलिए यहाँ लिखा है अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये बेटा रहा होता है इसमें साइनस के बारे में। और इसी एक पॉइंट इसमें और देख ले, इसी फैक्टर को जो होता है द टर्म फैक्टर्स लिखेंगे the term factors were referred
referred as genes by Johansen. देखिए Johansen in 1900, बहुत important लाइन है, in 19 अब जो मिनरल फैक्टर या एलिमेंट जो होता है यूज किया जाता है, उसी को जोहानसन साहब ने 1909 में कहा कि मेंडल साहब ये जो होता फैक्टर या एलिमेंट नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या, जीन, है ना। देख लें, इसी को जोहानसन साहब ने बोल दिया क्या, जीन। हालांकि मेंडल तब थे नहीं जब उन्होंने बताया, अभी आएंगे उसकी कहानी पे मेंडल के हम। इसका मतलब जोहानसन साहब ने 1909 को इसी फैक्टर या एलिमेंट को जो होता है यूज कर दिया, क्या है, ये जीन है, और यही रिस्पांसिबल है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम आशा करते हैं सारी बातों को समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते, एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए तब चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ मॉर्गन भी कुछ चीजें बता दी। कौन, मॉर्गन साहब। देखिए मॉर्गन साहब ने क्या बताया, मॉर्गन साहब ने क्या बताया, फादर ऑफ, मॉर्गन साहब किसके फादर हैं जरा बताएं आप। कल मैंने आपको बताया था फादर ऑफ किस जेनेटिक्स के हैं, जल्दी रिस्पॉन्स करिए। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये जो होता है 2020 का क्वेश्चन से नीट का है, तो याद रखिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो होता है क्या है, फादर है मॉर्गन साहब। देखिए मॉर्गन साहब, अच्छा ठीक है प्रिया, ओके बेटा। चलिए देखिए मॉर्गन साहब ने यहाँ पे क्या बताया, मॉर्गन साहब ने यहाँ बताया कि जो ट्रेड्स या कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं उनको हम डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं, और जो अपन जनरेशन में जो होता है अपीयर नहीं होते उसको हम रिसेसिव कर देते हैं। इसका मतलब उन्होंने एक सिंबल यूज किया, सिंबल यूज किया जो होता है अपीयरेंस के लिए। जो डोमिनेंट फैक्टर, यहाँ लिख रहा हूँ डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर के लिए होता है और रिसेसिव के लिए क्या यूज किया, रिसेसिव, रिसेसिव, रिसेसिव के लिए उन्होंने जो होता है स्मॉल लेटर का यूज। देखिए एक और अच्छी नई बात इन्होंने मॉर्गन साहब ने बता दिया, ट्रेड्स डोमिनेंट है उन्होंने क्या सिंबल यूज किया, अगर डोमिनेंट है तो आप कैपिटल से लिखे जाएंगे, अगर आप जो होता है रिसेसिव है तो आप जो होता है स्मॉल से लिखे जाएंगे। मतलब जिस ट्रेड्स, जिस करैक्टर के लिए जो होता है, जिस जीन का यूज किया जाएगा, पहले अगर वो जो होता है डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से यूज करेंगे, और जो रिसेसिव होगा उसको हम स्मॉल लेटर से यूज करेंगे। इतनी बातें जो होता है मॉर्गन साहब ने बताया। जोहानसन ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भैया ये एलिमेंट जो फैक्टर आपने मेंडल साहब कहा है एलिमेंट फैक्टर नहीं है, इसी का नाम क्या है, जीन। इतनी बातें क्लियर हुई भाई, हमें तो लग रहा है एक क्लास हो लगेगी तब पूरा हो पाएगा। यस सर क्लियर है। आपका टाइम ओवर होने वाला है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई फैक्टर तक की नहीं, जरा बताएं, यहाँ तक मैं कंप्लीट कर दिया। किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछिए, है ना। टर्मिनोलॉजी में टाइम जरूर लगेगा बेटा, टर्मिनोलॉजी वैसे जेनेटिक्स में पढ़ाता हूँ 1-1.5 महीने तक, है ना। इसको जो होता है, लेकिन पूरी जेनेटिक्स आपके जो होता है टंग पे होगी, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे तब। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, कभी भी जो होता है जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक सब याद आ जाएगा, लेकिन पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जीन, एलील्स, फैक्टर क्लियर हुए। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा देखेंगे, अब आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आपका टाइम ओवर होने वाला है। आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कितने क्वेश्चंस यहाँ से बने। पहला देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यही है
यहाँ पे जो होता है फैक्टर या एलिमेंट जो होता है टर्म कौन यूज किया, तो मेंडल ने यूज किया। और इसका जो होता है फंक्शन क्या है सर, कैन वी डिफाइन एलील एज जीन ट्रेट फॉर सेम कैरेक्टर्स। देखिए भाई कंफ्यूजन बिल्कुल न करिए रीति की, मैं दोबारा डिफाइन कर दे रहा हूँ। जीन का मतलब क्या है भाई, देखिए इधर जीन का मतलब आप कहेंगे, देखें अगर एक सेल है ना, तो सेल से देखेंगे क्या है, सब डीएनए है ना, तो इसी डीएनए को आप क्या करें, निकाल लीजिए। ये देखिए एक डीएनए को निकाल लिया ना, अब इसी डीएनए को हम अगर कट कर देना, ये देखिए ये क्या हो गया, स्मॉल फ्रेगमेंट हो गया। स्मॉल फ्रेगमेंट इसी को हम बोल दिया क्या,